Very important topic we are going to discuss today. Application of derivative exercise में we would discuss about maxima and minima. Introduction to maxima and minima. First of all, we would like to know what is maxima and to which point would be known as point of maxima. So let's start. What is maxima? Here is a curve that is drawn at this notebook. This is the curve of y is equal to fx. What we see here, that starting from this point, this function attains the maximum height at this point, and from this point, as the value of x increases, the value of fx decreases. Dear friends, you know it very well. When the slope of a function at any point of the curve is positive, it means the function is increasing. When the slope of the function at any given point on the curve is negative, then it is said that function is decreasing. So it's very necessary to know about increasing function and decreasing function before knowing about maxima and minima. So I am telling you that here the differentiation of the function is positive. You may say it differentiation of function or f dash x or slope of the tangent. You also know it that when a slope makes acute angle with positive direction of x-axis measured along anti-clockwise, and if it is 90 degrees, less than 90 degrees, then we say that slope is positive. So it's clear that here slope is positive and at this point slope is negative. This function is defined in open interval AB. A and B would be placed on x-axis. Here is A and at this point it is B. This function is defined in open interval AB. Now take a point C that is between A and B, and at this point the function attains maximum value. So we say that C is point of maxima. You can also see from this point function is increasing, and this is the highest point where function attains maximum value, and from this point it started to decrease. What we see in the graph of y is equal to fx, here C belongs to AB and FC. At point C, the FC, when you will put at place of x, the value would be y is equal to FC. FC is greater than fx for all x belongs to AB. For all x belongs to AB का मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू a और b के whatever value you are taking between a and b, you will find that the function will attain maximum value at point C only. Therefore, we say that C is known as point of maxima. Now I think it's clear to all of you. Now it's time to define minima. This is the graph of the function. Concavity is shown here. Y is equal to fx. The function is defined in open interval AB. Let a point C. What we see here that the function attains at point C, the value of function would be fc. It's clear to all of you. And this value of the function would be maximum for all value of fx between a and b. So we defined it as such. Here the function attains minimum value at point C and fc less than fx. यहाँ पर जो fc का वैल्यू आएगा, यह fx का जो भी वैल्यू, वो fx में जो x होगा ना, a और b के बीच के x का कोई वैल्यू लेगा. fc लेस देन fx. अब ये x क्या होगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab.
for all x belong to AB. Then we say that C is point of minima. Now natural question arises whether there is only one point of maxima or minima. हम अभी तक देखे हैं, we have seen here that there is only point of maxima, one point of maxima, and there is one point of minima. So the question, there may be question in your mind that is there only one point of maxima and minima in a given function? No, it's not right. There may be many point of maxima and minima. Function may have more than one maxima and minima. So, example of sin, you may take the example of sin x function, which is like this. What we see here, that there are many point of maxima and minima. This function is growing at this, move forward in this way. What we see here, that C1 and C3 is point of maxima in a given interval. See, here C1 is defined in a given interval AB. Suppose similarly C2 is defined in B, open interval BC. You may also say that C3 is defined in C to D open interval. So what we see, that there are many, the function may have many more point of maxima and minima. In the above graph, there are more than one critical point. You may say it critical point C1, C2, C3 or extreme point. At extreme point, the function attains maximum value or minimum value. It does not mean that extreme point will surely give maxima and minima, maximum point and point of minima and point of maxima. But it's sure that we try to find maximum value or minimum value of the function at that critical point or extreme point. What we see here, that fc1, fc3 are the local maxima. I am using the term local maxima. See here, since the c1 is the maximum value of the function in the local interval AB, and in this local interval at point c1 function attains maximum value, so we say that c1 is point of local maxima. And similarly in the interval B and C, c2 is point of local minima. Similarly in the interval C and D, C3 is the maximum value, C3 is the point of maxima. So we say that this is local maxima and local minima. Local maxima in different interval. Similarly, if with the minima, there are more than one minima in different interval of the function. Now, note sometime, अब देखो यहाँ पर मैक्सिमा है तो दिमाग में आता होगा कि मैक्सिमा जो होगा वो मिनिमा से बड़ा होगा, लेकिन कभी कभी उसी इंटरवल एक ऐसा तुमको इंजीनियरिंग के ग्राफ में कंसेप्ट आएगा, जैसे यहाँ पर देखो यह जो है एक लोकल इंटरवल में, मान लो इसको ए और बी मान लेते हैं, एक लोकल इंटरवल में जो C3 है यह मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का अटेंड कर, लेकिन लोकल में, होल फंक्शन में नहीं, एक लोकल इंटरवल में C3 पॉइंट पर FC जो है fx अटेंड मैक्सिमम वैल्यू. बट व्हाट वी सी दैट इन दिस गिवन इंटरवल, सपोज दिस इंटरवल इज C8D, in this interval the function for this interval C4 is C5 is point of minima, but at point C5 the whatever the value function will attain, the value of function at C5 would be greater than whatever the function value attained at point C3. See, C3 is point of maxima for a given interval, C5 is point of minima for another interval, but FC5 is greater than FC1. तो मतलब कभी कभी maxima of a given function in a specific interval may be lesser value than minima of the same function in the interval. हर बार मैक्सिमा, कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि किसी इंटरवल में फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वह उसी फंक्शन के दूसरे इंटरवल में जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी छोटा हो सकता है, जैसा आप इस ग्राफ से देख सकते हो. नहीं समझ में आ गया तो पॉज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा. हियर FC3 which is local maxima which FC3 which local maxima is less than FC5. Here FC5 is local minima in another interval. अब देखो यहाँ पे इंटरवल ध्यान से देखना, ये फंक्शन ए बी में डिफाइंड है. एट सी पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द दिस इज टेंजेंट, देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, dy by dx is greater than 0. At this point the function is parallel to x axis, means it behaves like constant function, and from this point when it as x increases the value of the function decreases. So
take a small value h which is greater than 0 at point C. Take a value very close to C from the left, that would be C minus h, and take another point very close to C from the right, that would be C plus h. You will observe that this is the method to know whether this is the point of maxima or minima. Method is that if you are taking a point C minus h, you will observe that the derivative of the function at that point is positive, and if you are taking a point just after the C, that is C plus h, you will find that derivative of that function at that point would be negative. So C belongs to AB. What we see that FC greater than fx, FC का जो वैल्यू होगा fx से सबसे अधिक होगा, तो क्लियर ही है, सबसे ऊंच पॉइंट है यहाँ पर. फॉर ऑल x बिलोंग टू C माइनस एच इधर होगा और C प्लस एच, तो C माइनस एच और C प्लस एच, इसमें जितने भी वैल्यू फंक्शन fx अटेंड करेगा उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू FC पर ही आएगा. और FC पाएगा तुम ये भी कह सकते हो कि यहाँ से पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, dy बाई ds पॉजिटिव है, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हो C के थ्रू पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो हम कहते हैं C को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. अब देखो दूसरा, इन दिस ग्राफ एंड FC1 ग्रेटर देन fx, FC1 ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x, C1 माइनस एच जस्ट पहले थोड़ा सा जस्ट बाद C1 प्लस एच होगा, तो ये x का इसमें से कुछ भी वैल्यू लोगे उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू FC1 पर अटेंड करे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. लोकल मैक्सिमा कहेंगे. दूसरा देखेंगे C2 बिलोंग्स टू BC. मान लो यहाँ पे लोकल वाला में देखो ये C2 पर लोकल मैक्सिमा है, मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो C माइनस एच पर C2 माइनस एच पर ग्राफ ड्रा करोगे तो नेगेटिव होगा, यहाँ पर C2 प्लस एच पर ग्राफ ड्रा करोगे तो पॉजिटिव होगा. तो जब C2 के थ्रू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अग्रसर होगा तो ऐसे C2 को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. सी केयरफुली बिफोर C1 in interval AB tangent is greater than 0, f dash is greater than 0, so it's increasing, and after C1 in interval AB, इसी में C1 के बाद f dash less than 0, but at point C1 tangent is parallel to x axis as f dash x is equal to 0, means derivative of the function at point C1 vanishes and this point gives the extreme point. एक्सट्रीम पॉइंट में बताया था कि यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही आएंगे. एक्सट्रीम पॉइंट हो गए. एक्सट्रीम पॉइंट आर दोज points at which function attains maximum or minimum value, but it always not correct. हम कह देते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट पर तुमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेंड ही करेगा. एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे लेकिन आप चेक करोगे देखोगे कि वो मैक्सिमम पॉइंट उस नहीं हो रहा है, मिनिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं हो रहा है. इसको हम आगे क्लियर करते हैं तुरंत. एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फंक्शन है. fx इक्वल टू मॉडुलस x बिलोंग्स टू रियल नंबर. व्हाट यू सी दैट दिस पॉइंट शार्प पॉइंट है, शार्प एज्ड है. यहाँ पर इस पॉइंट पर हम डेरिवेशन निकाल नहीं सकते हैं. सो डिस्पाइट बीइंग dy बाई ds जो तुम्हारा निकालोगे इन द वे ऑफ ग्राफ, dy बाई ds वेनिसेज. यहाँ dy बाई ds हम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहे हैं, और इस पर क्या करें, dy बाई ds जीरो होगा, लेकिन जीरो करने से जो x का वैल्यू जीरो आएगा, लेकिन ये चेक करोगे तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी नहीं है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी नहीं है. एबव ग्राफ dy बाई ds वेनिसेज और इट कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट. यहाँ डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं. एट दैट पॉइंट इवन आफ्टर दैट फंक्शन डज नॉट अटेन एक्सट्रीम वैल्यू, और यहाँ पर फंक्शन का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है. इन फिगर 1 वी कैन नॉट डिफरेंट द फंक्शन एज इट इज वेरी शार्प पॉइंट. बहुत ही शार्प एज पॉइंट है ना, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते किसी भी कॉर्नर पॉइंट पर. इन फिगर 2 dy बाई ds लाइज और एक्स एक्सिस पर ड्रा करोगे तो एक्स एक्सिस पर पड़ेगा. डिस्पाइट इट डज नॉट गिव एनी एक्सट्रीम पॉइंट. एक्सट्रीम पॉइंट जो एक्स आया वह हम बता रहे, तुम निकाला कि dy बाई जीरो कर दिया, एफ डैश इज इक्वल टू जीरो कर दिए, एक्स इक्वल टू जीरो आ गया. तुम्हारे दिमाग में बात आता होगा कि एक्स इक्वल टू जीरो आ गया तो इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए, नहीं तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होना चाहिए. बट इट इज नॉट लाइक दैट. द फंक्शन डज नॉट अटेन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट सी. बिकॉज देखो रीजन इज दैट व्हेन यू ड्रा द टेंजेंट एट दिस पॉइंट यू विल फाइंड दैट टेंजेंट इज पॉजिटिव and at this point tangent is also positive. So from positive to positive it is not changes, fx does not change its sign as x increases, so we say that this is not point of maxima, it is point of inflection.
It does not give any extreme point, means function does not have maximum and minimum value at that point. At that point. So it's right that function gives critical point at dash is equal to 0. जब तुम किसी का क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट निकालना होगा तो उसका डेरिवेटिव निकाल के एफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट देगा, बट हमेशा उसको मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा ऐसा कुछ नहीं है. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू कि वो उस पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही आएगा. वो जो तुम्हारा आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट पर कोई ज़रूरी नहीं है कि एस इक्वल टू 0 तो तुमको देगा. अब देखो, टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वी टेक हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? लेट ए फंक्शन बी डिफाइंड इन ए ओपन इंटरवल ए बी. लेट एफ बी कंटिन्यूअस, एफ कंटिन्यूअस भी है एट क्रिटिकल पॉइंट, लेट ए क्रिटिकल पॉइंट सी इन द इंटरवल ए बी. व्हाट वी सी दैट इफ एफ डैश एक्स, देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स जैसे ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, इफ एफ डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब कैसे इसको चेक करेंगे कि पॉजिटिव हो रहा है? यहाँ पर चूंकि स्लोप जो है पॉजिटिव है, सो इट्स क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग हियर एंड आफ्टर एफ डैश सी द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग. सो इफ साइन चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेज, एक्स का वैल्यू देखो ये एक्स यहाँ पर है, एक्स का वैल्यू ए और बीच में से कुछ भी ले लो, सी के लेफ्ट में सी के बाएं में कुछ भी राइट में जो वैल्यू एक्स का लोगे आप देखोगे कि सी के वेरी क्लोज टू सी विल फाइंड दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इंक्रीज, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग. बट आफ्टर एफ डैश सी द वैल्यू ऑफ द एफ डैश सी डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज. सो वी से दैट थ्रू पॉइंट सी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन moves like a positive to negative, it changes its sign from positive to negative. आई एफ डैश सी माइनस एच, यहाँ पर एफ डैश में सी माइनस डी पॉजिटिव स्लोप है तो ग्रेटर दैन 0 एंड एफ डैश सी प्लस एच लेस दैन 0. अब एच क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, देन सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. यह फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है. एक बार फिर से बताएंगे कि अगर एफ डैश सी में अगर फंक्शन का एक्स का वैल्यू बढ़ाओगे तो एफ एक्स जो होगा वह पॉजिटिव से निगेटिव्स की तरफ बढ़ेगा सी के थ्रू, माने सी से होते हुए पॉजिटिव से चला सी पर गया, सी के बाद नेगेटिव हो गया. अगर ऐसा केस आता है पॉजिटिव सी के किसी पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव है और लेफ्ट में बाद जो वैल्यू अटेंड करता है नेगेटिव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि सी जब उसी स्थिति में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा. दूसरा कंडीशन यह है, यही पॉइंट एफ डैश सी में अगर लेफ्ट में नेगेटिव स्लोप है और एफ डैश सी के बाद पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसे केसेस को हम पॉइंट ऑफ सी को कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा. एफ डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. आई एफ डैश सी माइनस एच लेस दैन 0 चूँकि स्लोप नेगेटिव है एंड एफ डैश सी प्लस एच पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर दैन 0, देन एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा. इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, जैसा कि यहाँ पर हुआ था कि अपना साइन चेंज ही नहीं किया था, यहाँ पर अपना साइन चेंज नहीं किया था, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह गया, चेंज साइन नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में हम कहेंगे डज नॉट तीन ही फर्स्ट डेरिवेटिव में दिया, 3 प्रकार का तुमको दिया. एक में दिया कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव गया, दूसरे में नेगेटिव से पॉजिटिव गया, तीसरा केस आएगा कि वो पॉजिटिव से पॉजिटिव रह जाएगा C1 C2 के थ्रू होकर, नहीं तो नेगेटिव से नेगेटिव रह जाएगा. वैसे केस में कहते हैं कि वो जो C आएगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा. अब देखो व्हेन देयर इज मल्टी ऑर्डर फंक्शन, 4th ऑर्डर 5th ऑर्डर टाइप का डेरिवेटिव आ गया, एक्स के पावर 5 का डेरिवेटिव तुमको निकालना पड़ गया, देन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बिकम टेडियस. सो जनरली टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वी यूज द मेथड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. We take the help of second derivative test. Means second derivative test means you have to define that function should be twice differentiable. Second derivative test, if a function is defined in open interval I, हर बार open interval में defined हो रहा है, and let f is twice differentiable at point C. If f dash c is equal to 0, what would give f dash c is equal to? What would f dash c will give? What would f dash c give? It will give critical point. C would be a point of local maxima when f dash s double dash c greater than 0. सबसे पहले f dash c को इक्वेट करो 0 से, आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, उसको टाइप डिफ्रेंशिएशन करो. अगर f डबल डैश c ग्रेटर दैन 0 आ गया तो जो c होगा वो कहा जाएगा कि लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है. फिर अगर f डैश c इक्वल टू 0 करने से जो c आया, अगर ट्वाइस डिफ्रेंशिएट उस पॉइंट पर किया
तो अगर वो लेस देन जीरो वैल्यू दे दिया, मतलब निगेटिव दे दिया एफ डबल डैश सी का जो वैल्यू होगा, तो हम कहते हैं कि सी जो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। लेकिन तीसरा केसेज है इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डबल डैश सी दोबारा भी डिफ्रेंशिएट किया, तो एफ डबल सी भी तुमको जीरो आ गया, देन दिस टेस्ट फेल। अब डिसीजन ही नहीं कर पा रहोगे, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड वेदर व्हाट वुड से सी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सी वुड बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और सी वुड बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। इट इज नॉट, इट इज ऑन डिसाइडेड हियर। Then what we do in this case, we follow the first derivative test, and according to first derivative test we decide that whether it would be point of maxima, point of minima or point of inflection. There are three cases are there already I have discussed there. Then this test fails to find local minima and local maxima, so we go back to first derivative test to know whether C is point of local minima or local maxima, or you may add that it is point of local point of inflection. अब इसका एल्गोरिदम क्या है, कैसे कैसे हम बढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया तो इसका एल्गोरिदम है कि सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको जीरो से इक्वेट कर दो। जैसे यहाँ पर है ये फंक्शन है सिक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, डिफ्रेंशिएट किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया। अब प्लस माइनस 1 आया, इसका वैल्यू एफ डैश 1 में डालोगे, डाल के देखो यहाँ पर -1 से 3, देखो पूरा नंबर लाइन को 3 भागों में बांट दिया, 3 डिसजॉइंट सेट में बांट दिया। तो -1 से पहले -2 ले लो और एफ डैश -2 यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर यहाँ पर मान लो पॉजिटिव आ गया, वैसे डालेंगे यहाँ पर मान लो -2 आ गए, तो 6 - 2 स्क्वायर -6 कितना आएगा, 6 × 4 - 6 18 आएगा। 18 ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। इसमें कोई जीरो लो, जीरो लेगा तो क्या होगा, 6 × 0 -6 लेस दैन 0, ये नेगेटिव हो गया। तो ये क्या देख रहे हो, पॉजिटिव से ये पॉइंट 1 एक सी पॉइंट ही मान लो सी है, ये C1 मान लो, C1 से थ्रू जो हम बढ़ रहे हैं तो प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो हम यही बताए थे कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये C1 जो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ गया, करोगे तो प्लस आएगा, प्लस ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो माइनस से प्लस पर जा रहा होगा तो ये होगा 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। दिस क्रिटिकल पॉइंट विल डिवाइड द इन नंबर लाइन ऑन 3 डिसजॉइंट सेट। और जैसा बताया वैसे चेक करने का मेथड है, जो चेक यहाँ पर कर दिया, आ गया है। एल्गोरिदम ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ये तो वही है जो मैंने बताया पीछे, वैल्यू पुट करते जाओ, देखते जाओ। इट विल गिव क्रिटिकल पॉइंट, एफ डैश सी से क्रिटिकल पॉइंट तो आएगा, नेचुरली नेचुरल है। फिर इसको ट्वाइस डिफ्रेंशिएट करो, एफ डबल डैश सी, इफ एफ डबल डैश सी ग्रेटर दैन 0 देन इट इज कॉल्ड, then C is called point of local minima, and if f double dash C less than 0 then C is called low point of local maxima. If f double dash C is also 0 then you may go to third derivative test. मैं इसका जिक्र करता हूँ, तीसरा बार भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर तीसरा बार डिफ्रेंशिएट करने से थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट कर दो, नहीं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में चले जाओ। मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, अगर तीसरा बार डिफ्रेंशिएट करने से भी 0 आ गया या डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच।